Good morning to you all, my dear viewers, and to my honorable guest, Dr. Sabir Michael. I would like to welcome you all to this online interview on navigating socio-economic challenges and international cooperation for minority rights in Pakistan. I'm your host, Reema, working as a research associate at South Asia Research Institute for Minority. Today, I have a renowned academician, socialist, social worker, and ardent human rights defender. He's presently serving as an assistant in the Department of Social Work at University of Karachi and as a president of Research Advocacy Social Training Institute of Pakistan since 2016. And he's also the founder of Peace, Welfare and Development Association. Before we proceed, could you please tell us about yourself, Dr. Samer Michael? You have given a brief introduction of mine. That humble introduction seems to be enough. But anyway, I just want to tell you, जैसा आपने बताया, मेरा नाम डॉक्टर साबिर माइकल है और मैं कराची यूनिवर्सिटी में प्रेजेंटली असिस्टेंट प्रोफेसर सोशल वर्क काम कर रहा हूँ. और बेसिकली मेरी जो जर्नी है, I started it in 1983 from the city of Okada in Punjab, where I studied in a convent high school, and then I finished my graduation from the government degree college Okada. And in 1998, I came back to my hometown Karachi. Actually, there was an Catholic Church run institute where we used to live together and study in a school. Normal people were studying with the blind. So that's the reason I was there. And then I came to Karachi in 1998 and then finished my master's from the University of Karachi. And in 2000, and then right after my master 2001, in the end, I started my PhD and finished it off in 2005 around. And during that, I also studied Italian language, and I'm quite good at Italian language and little of the French language as well. Then I started my career in this organization, Research Advocacy and Social Training Institute, as a research officer. Then after PhD, I moved to Greenwich University as a chairman, Department of Social Work, and then in Zavist for 3 years in 2007 to 10. And then for 2 years, I worked with the Bahria University as a visiting faculty and with a couple of other organizations. In 2013, I joined Karachi University as assistant professor in the Department of Social Work. And my PhD was basically on the socioeconomics problems facing the minorities in Pakistan with reference to Christian and Hindus. And it was very uh, heartbreaking study or heartiest study in the sense that the things that I was facing as a blind, as a minority, and as a person of underprivileged or underfit communities. So I thought there should be some work at academic level which should further help me to enhance the information about the minority rights and further may help me to continue the work for the upliftment of the minority. Meanwhile, I remained in United Nations as well for more than 6 months, where I worked. I completed my United Nations Minority Fellowship, one of the prestigious course in the minority rights education. Then I delivered my speech in the second UN Minority Forum on the political participation of the minorities. And now I am actually running organization Peace, Welfare and Development Association. Okay, so I am Yes. running an organization Peace, Welfare and Development Association. And this organization is primarily interested to work for the protection and promotion of the rights of the minorities and persons with disabilities with the cross-cutting themes. And basically, we work through the lobbying and advocacy, through street theater, through seminar conferences, to enhance the information and awareness of the minority rights and try to do the policy, pro-minority legislation and policy making by engaging with the different stakeholders key stakeholders who can play their role, like parliamentarians, media individuals and media houses, and the bureaucrats and the politicians on the minority rights, disability rights, and other human rights in general as well. So, actually, personally, I am very active
in organizing and participating in protests and peaceful demonstrations, and also to address the national and international seminars. And and also interested to go to abroad to raise the issues of the minorities before the international community, to have a positive lobbying and advocacy from the international community to promote the human rights of minorities in Pakistan. Right, very nice. It was so good hearing from you. So, thank you so much, Dr. Samir Michael, for this, for a briefing about yourself. And personally, even I have learned so much about you. And moving ahead, I would like you to tell me about your personal journey and experiences that you face as a member of Christian minority community in Pakistan, and how has it shaped your work as a human right defender. Okay. इफ आई एम वर्किंग फॉर द माइनॉरिटी राइट्स, एक्चुअली इसकी वजह ही ये है कि जैसे मैंने आपको पहले कहा कि बीइंग अ माइनॉरिटी एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी, मैंने खुद डिस्क्रिमिनेशन फेस किया. एक्चुअली आई वाज इंटरेस्टेड टू जॉइन फॉरेन सर्विस, लेकिन जब मैं इंटर के बाद अपनी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर रहा था, सब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहा था, तो मेरे सोशल वर्क के उस्ताद थे उकाड़ा, गवर्नमेंट कॉलेज उकाड़ा में, जफर अली टीपू साहब. उन्होंने मुझे, आप ऐसे सब्जेक्ट का इंतखाब करो जिससे आप को खुद भी तसल्ली हो और आप लोगों के लिए डायरेक्ट इंटरवेंशन के थ्रू काम कर सको. देन ही इनकरेज मी टू जॉइन द सोशल वर्क डिपार्टमेंट. तो मैं समझता हूँ कि छोटे होते हुए ही जब हम जिस इलाके में रहते थे, पीआईबी कॉलोनी में, वो पीआईबी कॉलोनी एक कराची का एक बहुत मशहूर इलाका है, जो पीर इलाही बख्श, जो ज़ियाउल हक के ज़माने में वज़ीर आला होते थे, उन्होंने वो इलाका हमारे क्रिश्चियन लोगों को दिया, लेकिन उसको भंगी पाड़े के नाम से पुकारा जाता है और आज भी पुकारा जाता है. ये डिस्क्रिमिनेशन की पहली शक्ल थी एक मेरे सामने कि क्यों हमें इस नाम से पुकारा जाता है. इसके अलावा जब हम पढ़ा, तो खैर मैं कॉन्वेंट स्कूल में, लेकिन जब अपने उन दोस्तों से जो गवर्नमेंट स्कूल में थे, तो उनसे पता चला कि किस तरह से असातिज़ा कराम और टीचर्स जो हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं साइलेंटली, तो ये चीज़ फील होती रही. फिर देखा मेरे अपने पेरेंट्स चूंकि सैनिटरी वर्कर थे, तो मैंने देखा कि लोग उनके साथ कितनी ज्यादती करते हैं, कितनी बद इखलाकी से पेश आते हैं. मैं बता रहा था कि जो मेरे पेरेंट्स थे, जब उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता देखा, मेरे इलाके में जब कभी भी क्रिसमस होता था तो हम लाइटें वगैरह लगाते थे, तो दूसरे इलाकों के लोग मुस्लिम आ जाते थे और उन्हें तोड़ जाते थे और हैरेस करते थे. तो ये वो सारी चीजें थी जो मुझे इनकरेज करती थी. फिर मीनवाइल जैसे जैसे शाउर आता गया, तो मैंने देखा कि सियासी तौर पर भी हम एक्सक्लूडेड हैं, सोशोलॉजिकली भी हम एक्सक्लूडेड हैं, इकोनॉमिकली भी हम एक्सक्लूडेड हैं और कल्चरली भी हम एक्सक्लूडेड हैं, क्योंकि हमें ये समझा जाता है कि शायद हम मसीही हैं तो हम, हमारा ताल्लुक वेस्ट से जुड़ा जाता है, अमेरिका से, बरतानिया से. हालांकि बिल्कुल ऐसा नहीं है. हम तो सन ऑफ द सॉइल हैं. जिस तरह इस खित्ते के लोग जो हैं, बहुत सारे हिंदू से मुसलमान हो गए, मुसलमान के बाद कुछ लोग जो सिखों से क्रिश्चियन हो गए, या इस तरह से ये सिलसिला चलता रहा तारीखी तौर पर, लेकिन आज तक हमें एक्सेप्ट नहीं किया जाता. क्योंकि इस माशरे में कास्ट सिस्टम की एक तारीख है, उसी बिना के ऊपर हमें इन नामों से पुकारा जाता है. हमें अपने बराबर का शहरी नहीं समझा जाता, समाजी तौर पर भी, सियासी तौर पर भी, और कानूनी तौर पर भी, और आईनी तौर पर भी. ये वो बेसिकली सारी चीजें थी जिन्हें मुझे इनकरेज किया कि कोई ऐसा काम करना चाहिए, ऐसा काम करना चाहिए जिससे मैं अपनी पूरी जिंदगी में अपनी माइनॉरिटीज के लिए और इन जनरल पाकिस्तान की स्टेबिलिटी के लिए कोई कंट्रीब्यूट कर सकूं. Thank you so much, sir. Amazingly said. And आपके experiences से personally मैंने भी बहुत कुछ सीखा, because this is something that yes, there are certain people who are who are going through this. So, sir, now आप मुझे थोड़ा सा इस बारे में बता दें that how has the status of religious minority in Pakistan evolved over the years, and what trend have you observed in the terms of सोशियो-इकोनॉमिक कंडीशंस, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो? अच्छा जी, बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि पाकिस्तान माइनॉरिटीज ने बनाया था. जब पाकिस्तान बना तो हमारे जो मुस्लिम बहन भाई थे वो माइनॉरिटीज थे, और पाकिस्तानी मसीहियों ने ये देखते हुए कि चूंकि ये मुल्क माइनॉरिटी वाले बना रहे हैं और उनको पता है कि माइनॉरिटी का दुख क्या होता है, पाकिस्तान में शामिल होने का फैसला किया. हम ये जानते हैं कि दीवान बहादुर एसपी सिंघा, उन्होंने पाकिस्तान के हक में वोट डाला पंजाब की असम्बली का, तभी पाकिस्तान बन सका. शायद अगर वो ऐसा ना करते, उन्होंने कायद-ए-आज़म की एश्योरेंस पे यकीन किया, तो फिर ये सिचुएशन होने लगी.
जब पाकिस्तान बना, ये सिचुएशन हुई कि पाकिस्तान बन गया, क्योंकि पंजाब ना आता तो कभी पाकिस्तान का खाका मुकम्मल ना होता। और इस हकीकत को हमारे मजहबी और सियासी उलमा और रहनुमा बड़ी आसानी से भूल जाते हैं। ये ऐसा एहसान है जो पाकिस्तान की मेजोरिटी कभी उतार ही नहीं सकती। मसीहियों ने जो एहसान किया हुआ इस खित्ते के ऊपर, जो एहसान उनके लिए तो बाद में जाके ज़ाहिर है वबाले जान बन गया। मैं बताना चाहता हूँ, जैसे ही पाकिस्तान बन गया तो फिर उसके बाद सबसे पहले हिंदू जो माइनॉर ज़ाहिर है वो मेजोरिटी माइनॉरिटी ग्रुप था, क्रिश्चियन और मसीहियों में वो ज्यादा तादाद में थे, उनके साथ ज्यादती शुरू हुई। 1948 में एक कत्लेआम हुआ था यहाँ कराची। उसके बाद बहुत सारे हिंदू यहाँ से चले गए। उसके बाद हमने देखा कि जब पाकिस्तान बना तो उस वक्त अकलियतों की तादाद 13% थी। आज पाकिस्तान में अकलियतें कोई गुजर हुकूमत के मुताबिक कोई 3% भी नहीं मानते उसे, लेकिन चलो 3% के करीब होंगी। तो ये फैक्ट इटसेल्फ ये जाहिर करता है कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज की सूरत हाल जो है वक्त के साथ साथ खराब होती रही है, और माइनॉरिटीज प्रेफर करते रहे हैं कि जब जब जिसको जहां मौका मिले वो इस मुल्क को छोड़ के चला जाए। क्योंकि आपने पूछा था कि सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस के वक्त के साथ साथ Yes, of course. मसीहियों और हिंदुओं अकलियतों की जो सिचुएशन है वो बद से बदतर होती गई है। और इस वक्त तो आप ये कह सकते हैं कि वो अपनी पीक पर है। इंतहाई सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है, जिसको हम अदम तहफ़्फ़ुज़ कहते हैं, कि एक किस्म का डर है, खौफ है, जो हर वक्त अक़लियतों के जहन में रहता है कि कोई भी उन्हें मजहब के नाम पे ब्लास्फेमी लॉज के ऊपर या डिस्क्रिमिनेशन करते हुए प्रोसिक्यूट कर सकते हैं। तो मैं ये देखता हूँ वक्त के साथ साथ ये सूरत हाल खराब हुई है। पहले मैं ये समझता हूँ जब 1970 तक, 72 तक पाकिस्तान में अकलियतें खास तौर पर किसी हद तक बेहतर थी। लेकिन उसके बाद ये है कि फिर जब मुल्क के सियासी और मुआशी हालात खराब होते चले गए, जैसे गुर्बत बढ़ती गई, जैसे नाकानूनियत बढ़ती गई, जैसे रूल ऑफ लॉ वीक होता गया, इसके नतीजे में फिर जो कमजोर तबकात हैं जिसमें माइनॉरिटीज भी शामिल हैं, वो ज्यादा अक्सरियत के अताब का शिकार होने लगी। और आज और इसी दौरान हमने देखा कि गोजरा का वाकया हुआ, जोसेफ कॉलोनी का वाकया हुआ, उसके बाद बादामी बाग का वाकया हुआ, कसूर में एक मसीही कपल को जला दिया गया 4 नवंबर को, जिसकी के कल एक हम एनिवर्सरी मना रहे थे। उसके साथ साथ यह है कि फिर अभी हमने जड़ा वाला वाकया देखा। इन सारे वाकयात से सिर्फ ये साबित होता है कि मसीही पाकिस्तान में या अकलियतें इन जनरल पाकिस्तान में जो हैं गैर महफूज हैं, अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं, खौफ का शिकार हैं। और मैं ये नहीं कहता कि रियासत ऐसा कर रही है, लेकिन रियासत पैसिवली एक्ट करती है, रियासती इदारे पैसिवली एक्ट करते हैं, जिसकी बिना पर ज़ाहिर है फिर रियासत से अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास जो है वो बढ़ता है। हमें हुकूमत से कोई शिकवा नहीं है, क्योंकि हुकूमत में तो सियासी लोग आते हैं, उन्होंने अपने काम सियासी मसलहतों के मद्देनजर रखे होते हैं। लेकिन रियासत और रियासती इदारे जो हैं, जिनके सर पर जो हमारी रियासत माँ है, जिनके सर पर हम आ, इस मुआशरे में खड़े हुए हैं या हमें तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होना चाहिए, वो जब एक्टिवली प्रो एक्टिवली एक्ट नहीं करते, जिसमें जुडिशरी है, जिसमें हमारे सलामती के इदारे हैं, तो फिर अफसोस होता है और ये तहफ़्फ़ुज़ जो एहसास तहफ़्फ़ुज़ और खौफ जो है वो बढ़ता जाता है। एब्सोल्युटली राइट सर। बिल्कुल वाक़ई में ये जो वाक़यात होते हैं इनसे काफ़ी हमें भी खुद भी अब बहुत अवेयरनेस मिलती है कि किस तरीके से। लेकिन सर प्रॉब्लम ये आती है कि यहाँ पर अगर एज़ माइनॉरिटी की बात करें तो उनको भी थोड़ा डर लगता है कि टू स्पीक अप, कि कहीं उन पे भी कोई ऐसा ब्लास्फेमी लॉ ना आ जाए। So taking it further on, I would now like to ask you, sir, can you tell me something about your UN Minority Fellowship? Okay, how was your experience when you were a एक्चुअली ये जो यूएन माइनॉरिटी फेलोशिप का एक्सपीरियंस है, इसने मेरी जो माइनॉरिटी राइट्स की जदोजहद है, इससे मुझे बहुत स्ट्रेंथन किया और इंस्पायर किया। हाँ, मैं जैबिस में पढ़ाता था। तो हमारे प्रेसिडेंट होते थे बहुत ही लर्नर्ड मैन, हमारे सिंध के, पाकिस्तान के, डॉक्टर जावेद लगारी साहब, जो बाद में एचईसी के चेयरमैन भी रहे। तो मैंने अप्लाई किया और उसमें मेरी सिलेक्शन हो गई। तो मैंने उनसे जिक्र किया कि सर मुझे जॉब छोड़ के कुछ अरसे के लिए जाना होगा। तो उन्होंने कहा कि देखो ये जॉब तो सारी उम्र चलती रहेगी, हम भी यही हैं, हम आपकी जॉब को कंटिन्यू करेंगे, आपने जितना टाइम वहाँ स्पेंड करके आना है जाओ। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान के लिए भी ये ऑनर है, और ख़ासतौर पर माइनॉरिटीज़ के लोगों को तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती ही नहीं है। तो अगर ये मिल रही है तो इसको अचीव करें। जब मैं यूएन में गया तो बेसिकली मैं पहले शुरू में बहुत
जज्बाती होता था ह्यूमन राइट्स और माइनॉरिटी राइट्स एक्टिविज्म। जब मैं यूएन में 6 महीने साल तकरीबन काम किया तो मैं जो मेरी ह्यूमन राइट्स की एक्टिविज्म है वो थोड़ा मेच्योर हो। हमने सीखा कि किस तरह हमने सस्टेनेबल बेस पे जो है वो ह्यूमन और माइनॉरिटी राइट्स के लिए काम करना है। पहले हम ऐसे नौजवानों में थे उस वक्त जो कट मरने के लिए तैयार हो, जो एविडेंस लॉ के कानून शहादत पर भी मुजाहरे करते थे तो पकड़े जाते थे, जो हैरेसमेंट लॉ के लिए भी मुकदमा बनाने के लिए मुजाहरे करते थे तो पकड़े जाते थे। ब्लास्फेमी लॉ हमने ये सीखा, मैंने वहां जाके, मुझे मेरे सीनियर्स ने, कॉलीग्स ने समझाया कि देखें, आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट की है आपकी फैमिली ने, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, चर्च ने, नेशंस ने, मुख्तलिफ एनजीओ ने इंटरनेशनल ट्रैवल करवाते हैं। तो आपका ये फर्ज है कि आप बहुत जिम्मेदार तरीके से ह्यूमन राइट्स के लिए काम करें और हमेशा ह्यूमन राइट्स लैंग्वेज इस्तेमाल करें। तो मैं वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था कि मुझे यूनाइटेड नेशंस और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स सिस्टम और यूरोपियन ह्यूमन राइट्स सिस्टम जो है उसको समझने का मौका मिला। वहाँ मुझे डिप्लोमेट्स के साथ भी कुछ काम करने का मौका मिला। और फिर यह है कि ज़ाहिर है पाकिस्तान के जो डेलीगेशन आते थे उनके साथ भी मिलने का मौका मिला। और सबसे बड़ा मौका मेरे लिए सेकंड ह्यूमन माइनॉरिटी राइट्स फोरम में पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ऑफ माइनॉरिटीज के हवाले से स्पीच करने का मौका मिला, जिसमें हमारे उस और वजीर खारजा और सेक्रेटरी खारजा भी जो हैं वो तशरीफ लाए थे। और मैंने अपना मौक़िफ़ बयान किया कि किस तरह माइनॉरिटीज जो हैं इनसफिशिएंट पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का शिकार हैं, जिसकी वजह से मुआशरे में जो इक्वल सिटीजनशिप है उसके हसूल में उन्हें मुश्किल पेश आ रही है। एनीवे, इट वाज अ यूनिक एक्सपीरियंस। और मैं ये समझता हूँ कि तमाम जो ह्यूमन राइट्स के लिए लोग काम करते हैं ये साल में 1 या 2 दफ़ा अनाउंस की जाती है और उनको सबको इसमें अप्लाई करना चाहिए। और अगर वो उन्हें सिलेक्शन हो जाए तो ज़रूर अटेंड करनी चाहिए, क्योंकि इससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, आपकी नेटवर्किंग मजबूत होती है और आप अपना जो जो अज़म है, आपका डिटर्मिनेशन है, वो स्ट्रेंथन होता है। ऑलराइट सर, कैन अगर आप हमारे व्यूअर्स को ये बताएं कि यूएन माइनॉरिटी फेलोशिप पे कैसे अप्लाई करते हैं? हाँ जी, सिंपल उसका तरीका ये है कि आप ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स OHCHR www.OHCHR.org इनकी वेबसाइट को देखा करें। और एक और है माइनॉरिटी फोरम, यूएन माइनॉरिटी फोरम, आप इसको गूगल करें और यहाँ दोनों पर जाकर आपको माइनॉरिटी राइट्स के हवाले से ट्रेनिंग और एक्टिविटीज मिलेंगी। एक और ऑर्गेनाइजेशन है माइनॉरिटी राइट्स स्टडी करें और इसमें अप्लाई करें। अप्लाई करना शर्त है। हम लोग थक जाते हैं, उकता जाते हैं, लेकिन यह है कि आप अप्लाई करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी जरूर सिलेक्शन होगी। तो ह्यूमन माइनॉरिटी फेलोशिप में आप अप्लाई करें, उसके बाद आपको किसी एक ऑर्गेनाइजेशन की रिकमेंडेशन चाहिए होगी, वो खुदा करेगा मिल जाएगी, वो इतना इशू नहीं होता। तो अगर आपकी सिलेक्शन हो जाए तो पहले तो शायद वो काफी लंबी थी, अभी शायद 2 या 3 महीने की है, लेकिन बहरहाल ये एक्सपोजर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद आप कनेक्ट हो जाते हैं पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी से जो माइनॉरिटी राइट्स के लिए काम कर रही है। Hi, thank you so much, sir, for sharing about how to participate in UN Minority Forum. So moving ahead, अगर आप मुझे थोड़ा इंटरनेशनल कॉपरेशन के बारे में बताएं कि what role does international cooperation plays in addressing the challenges faced by minority communities in Pakistan? अगर आपके पास कोई पर्सनल एक्सपीरियंस और आप शेयर करना चाहें तो। मैं मेरी मेरी जो ऑब्जर्वेशन है ना, अभी तक जो माइनॉरिटी राइट्स है वो टॉप एजेंडा में नहीं आ सका इंटरनेशनल चिल्ड्रन राइट के ऊपर। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि यूनाइटेड नेशन का एक डिक्लेरेशन है, यूएन डिक्लेरेशन ऑन माइनॉरिटी राइट्स, जो 1992 या 1992 में पास हुआ था। वो बेसिक डॉक्यूमेंट है जिसके मुताबिक उसकी कुछ 9 प्रोविजंस हैं जो एक्सप्लेन करती हैं कि किस तरह हुकूमतें जो हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, आप ये समझ लें कि किस तरह हुकूमतें जो हैं वो माइनॉरिटी राइट्स के प्रोटेक्शन और प्रमोशन के लिए काम करेंगी अंडर द अम्ब्रेला ऑफ द यूडीएचआर, यानी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। फिर ऐसा है कि ये जो आईसीसीपीआर या इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स है, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन है, या रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, या जितने भी हमारे इंटरनेशनल कन्वेंशंस और कवेनेंट्स हैं, उनमें मुख्तलिफ शिकें हैं जो माइनॉरिटी राइट्स के हवाले से बात करती हैं। ये तो हो गया उसका कानूनी। फिर अगर हम पाकिस्तान में भी आते हैं तो पाकिस्तान में माइनॉरिटीज के लिए एज सच लेजिस्लेशन जो डायरेक्ट तो मौजूद नहीं है, लेकिन हमारा आर्टिकल 36 और 37 जो है वो ये बात करता है
कि हुकूमत पाकिस्तान माइनॉरिटीज को जो है, या माइनॉरिटीज या जो कम्युनिटीज फ्रॉम स्पेशल बैकग्राउंड है, उनको जो इकोनॉमिक सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, उनको हुकूमत जो उनके लिए स्पेशल इकदाम करेगी, अफर्मेटिव एक्शंस लेगी और उनके लिए खसूसी इकदाम किए जाएंगे। आर्टिकल 25 जो है वो इक्वालिटी की बात करता है कि तमाम पाकिस्तानी बराबर हैं। आर्टिकल 27 और 28 जो है वो नॉन डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है, एजुकेशन की बात करता है। और आर्टिकल 19 और 18 जो है वो फ्रीडम टू मूवमेंट और फ्रीडम रिलीजियस फ्रीडम की बात करते हैं। ये वो सारी चीजें हैं जो हमें जो 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 मजहब के हवाले से चीजें दी जाती हैं। इस तरह इंटरनेशनल लेवल के ऊपर एक माइनॉरिटी राइट्स फोरम है जो इसके लिए काम करता है। माइनॉरिटी के हवाले से एक स्पेशल रिपोर्टर है जो इसकी रिपोर्टें करता है। इसके अलावा जो रिलीजियस फ्रीडम का स्पेशल रिपोर्टर है, रिपोर्ट चेयर है, वो भी इसके लिए काम करता है। तो एक सिस्टम तो मौजूद है, लेकिन मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन में कि अभी ये टॉप एजेंडा में से नहीं है। ज्यादा फोकस जो है वो जेनोसाइड, वुमेन राइट्स और उस पर होता है, जो चाइल्ड राइट्स है। लेकिन बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता ये अच्छी चीज हो रही है कि लोगों ने इसको अंडरस्टैंड करना शुरू किया है और मुख्तलिफ ममालिक में रिलीजियस फ्रीडम के ऊपर काम होता है। जैसे यूएस कमीशन ऑन द रिलीजियस फ्रीडम है, बरतानिया में है रेशल एंड इक्वालिटी कमीशन। तो ये इस तरह के इदारे हैं जो मिलकर बहुत सारी एफर्ट्स कर रहे हैं। किसी जगह कोऑर्डिनेशन में नजर आती है, कभी उनमें कोऑर्डिनेशन नहीं भी होती, आइसोलेशन में हो रहे होते हैं। लेकिन यह है कि एक्टिविटीज होती रहती हैं जिससे बहरहाल एक स्पेस तो माइनॉरिटी राइट्स के लिए दुनिया में बनी है। यूएन में पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशंस का माइनॉरिटी के हवाले से इतना ज्यादा काम नहीं है, क्योंकि पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में जो माइनॉरिटी फोरम है उसका ऑफिस नहीं है, या सबसे बढ़ के तो आप ये कहें यूएन ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स, यूएनओएचसीआर, उसका ऑफिस ही नहीं है। जिसकी वजह से ह्यूमन राइट्स की जो एक्टिविटीज है वो सही तरह से कोऑर्डिनेट नहीं होती और यूनाइटेड नेशंस को फिर डिपेंड करता है यूएन फैमिली ऑर्गेनाइजेशन में जो दीगर ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके स्टाफ पर, जैसे यूएनडीपी है, यूएनएफपीए है या दीगर इदारे हैं, उनको जो है वो सामने लाना पड़ता है या उनके स्टाफ के थ्रू फिर जो ह्यूमन राइट्स का एजेंडा है उसको प्रमोट करना होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि शायद पाकिस्तान में माइनॉरिटी राइट्स का काम इंटरनेशनल लेवल कॉपरेशन के हवाले से इतना हौसला अफजा नहीं है। दुनिया को ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा ऑफिस स्टैब्लिश करने की जरूरत है, ताकि फिर एक जो इंटरनेशनल लॉबिंग और एडवोकेसी है वो प्रॉपर तरीके से हो सके। राइट, थैंक यू सर, आपने इतना अच्छा हमें सजेशन भी दिया, सो इट रियली मैटर्स। सर, नाउ मूविंग अहेड, बिकॉज if I want you to highlight on research advocacy social training institute, उसकी क्या contribution रही है towards the minority communities in Pakistan? के कंट्रीब्यूशन को हाईलाइट करने की मैं वाबस्ता रहा हूँ एज ए प्रेसिडेंट 2008 या 9 से लेकर 2017 से लेकर 2017 तक। तो उसमें बुनियादी तौर पर हुआ ये कि मैंने उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दिया, लेकिन हमारे दोस्त जो हैं वो उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। उसका कंट्रीब्यूशन ये है कि उन्होंने स्ट्रीट थिएटर के जरिए से, उन्होंने इसके जरिए से चीजों को प्रमोट करने की कोशिश की, कम्युनिटी वर्क के जरिए से कम्युनिटी में जाके स्ट्रीट थिएटर किया, कम्युनिटी में जाके ह्यूमन राइट्स, चाइल्ड राइट्स के हवाले से ट्रेनिंग्स की, इंटरफेथ के हवाले से प्रोग्राम किए। लेकिन जब मैंने उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दिया तो मैंने फिर 2016-17 में एक ऑर्गेनाइजेशन डेवलप की, पीस वेलफेयर एंड डेवलपमेंट एसोसिएशन के नाम से, जो बुनियादी तौर पर ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका काम लोगों की वेलफेयर भी था, जिसका काम लोगों की डेवलपमेंट भी है और जिसका काम लोगों की लॉबिंग और एडवोकेसी है। आपको पता है हमारे सोशल सेक्टर में मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन बनती हैं, फिर वो अपना काम करती रहती हैं, बहुत सारे दोस्त जो हैं वो फिर अपना नया सफर लेते हैं, लेकिन वो होता उसी का एक्सटेंशन है, उसी का एक्सटेंशन है। मैं ये समझता हूँ रास्ती ने कराची की सतह पर और इस्लामाबाद और बिहाड़ी और मुख्तलिफ इलाकों में उन्होंने बहुत ज्यादा सोशल एक्टिविस्ट तैयार किए और ये कंट्रीब्यूशन दिया कि लोगों को, लोग किस तरह से मिलकर जो है वो सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के लिए काम कर सकते हैं। Alright, sir. So, and sir, since आपने कहा कि 2007 से 2017 तक आपकी जर्नी रास्ते के साथ भी रही है, right? You were the founder of it. So that's very nice. So, sir, moving ahead, अगर आप नेशनल सिटीजन लॉबी डेलीगेशन के हवाले से, ह्यूमन राइट्स डेवलपमेंट के हवाले से कुछ इम्पोर्टेंस शेयर करना चाहें। जी, मैं बताना चाहता हूँ नेशनल लॉबिंग डेलीगेशन फॉर माइनॉरिटी राइट्स पाकिस्तान में बल्कि साउथ एशिया में एक यूनिक एक्सपीरियंस है। इसका मकसद बुनियादी तौर पर लॉबिंग और एडवोकेसी के जरिए इक्वल सिटीजनशिप के लिए काम करना है और वो उन कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज के लिए काम करना है जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन देता है। और थ्रू द लॉबिंग एंड एडवोकेसी प्रोटेस्ट की बजाय इंगेजमेंट, डिस्कशन और
लोगों के साथ बातचीत करके अपने इश्यूज को सॉल्व करने की कोशिश करना है। इसमें तकरीबन हम 24 लोग हैं पूरे पाकिस्तान में 2012 से, हिंदू, क्रिश्चियन और मुख्तलिफ दीगर फेथ्स के लोग हैं। और उनका काम बेसिकली ये है कि जो प्रो माइनॉरिटी लेजिस्लेशन है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जॉब कोटा है, जो एजुकेशन कोटा है के हसूल है, उसके लिए, और प्रो माइनॉरिटी लेजिस्लेशन खासतौर पर उसके लिए काम करना है थ्रू द लॉबिंग और एडवोकेसी। और जैसा मैंने पहले कहा कि उसमें हम लोगों से, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ मुलाकात करते हैं, डिस्कशन करते हैं, पार्लियामेंट में जाकर लोगों से बात करते हैं, हाई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ, हमारी प्रेसिडेंट तक हम लोगों ने अपना माइनॉरिटी राइट्स का एजेंडा जो है वो प्रमोट किया। अब नेशनल लॉबिंग डेलीगेशन की तरफ से कई एक ग्रुप जो है वो काम कर रहे हैं मुख्तलिफ नामों से। तो हमें ये खुशी होती है कि इस आइडिया को जो है वो पसंद किया गया है, और लोग मुख्तलिफ सतहों पर, यानी नेशनल और मुकामी सतह पर, सूबाई सतह पर, शहरी सतह पर अपने मसाइल को लॉबिंग और एडवोकेसी के थ्रू हल करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि मसाइल असल में हल जो है वो डिस्कशन से ही होने हैं, बातचीत से ही होने हैं। प्रोटेस्ट जो है, डेमोन्स्ट्रेशन जो है, वो एक साइडलाइन टेक्निक तो हो सकती है, एक एक्टिविटी तो हो सकती है, लेकिन बहरहाल इश्यूज तो आके टेबल पर ही रिजॉल्व होने, और उसके लिए बात करने की जरूरत है, जो कि हम नेशनल लॉबिंग डेलीगेशन के प्लेटफॉर्म से और दीगर इस तरह के प्लेटफॉर्म के जरिए से करते रहते हैं। All right, very well explained, sir. And it's so good, sir, that कि आप basically internationally भी आपने इतना अपनी services दी है. So it's actually an honor to interview you. So, sir, moving ahead, अगर हम One Release International (ORI) की बात करें, can you please highlight the objective and projects of this Canadian registered charity in Pakistan? वन रिलीज इंटरनेशनल हमारे एक दोस्त हैं, पास्टर बाबर अल्लाह, उनकी बनाई हुई एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो टोरंटो में मुकीम है, ब्रेंटन टोरंटो में। असल में 2021 में मेरा उनसे राब्ता हुआ था, जब उन्होंने इंटरनेशनल माइनॉरिटी राइट्स कॉन्फ्रेंस कंडक्ट की थी, तो मैं वहां एज ए मेन स्पीकर उनके पास गया था। वन रिलीज इंटरनेशनल, जिसका नाम शायद अब उन्होंने रेफ्यूजीज फर्स्ट कर दिया है, उसका बुनियादी मकसद ये है कि जो दुनिया भर में और खासतौर पर पाकिस्तान में जो लोग परसिक्यूशन का सामना करते हैं और जिनको सेटलमेंट की जरूरत है, दीगर एक मुल्क छोड़ के कनाडा या दीगर जगहों पर, मलेशिया से या किसी और कंट्री से, तो उन लोगों की हेल्प के लिए वो ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है। ये इसका प्राइमरी एम है। इसके अलावा ये है कि माइनॉरिटी राइट्स के हवाले से एडवोकेसी करना, और जो माइनॉरिटी परसिक्यूशन फेस करती है उनको लीगल सपोर्ट देना, उनको सोशल सपोर्ट प्रोवाइड करना, उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना थ्रू द लोकल ऑर्गेनाइजेशंस। और जैसे मेरी ऑर्गेनाइजेशन है पीस वेलफेयर डेवलपमेंट एसोसिएशन सिंध में, और वहां पंजाब में भी ऑर्गेनाइजेशन है, तो एक माइनर या मेजर जो भी कंट्रीब्यूशन हो सके, जो परसिक्यूशन के इफेक्टी हैं, उनको सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। ये उसका बुनियादी मकसद और काम है। और उनका प्रोजेक्ट ये है कि वो हम पाकिस्तान में वो इदारे बनाना चाहते हैं, शेल्टर होम, ताकि जो लोग परसिक्यूशन का सामना करते हैं या गुर्बत और दीगर मसाइल का शिकार है, उनको वहां पर माइनॉरिटीज के हवाले से एक ऐसी स्पेस प्रोवाइड की जा सके जहां उन्हें किसी भी किस्म के दबाव और डिस्क्रिमिनेशन का सामना ना करना पड़े। राइट सर, आपने अभी कहा कि वन रिलीज इंटरनेशनल का नाम रीफ्रेज हुआ है, सो कैन यू प्लीज टेल अस द न्यू नेम फॉर वन रिलीज इंटरनेशनल? रीफ्रेज अभी शायद आई थिंक वो इन द प्रोसेस ऑफ द चेंज इन द कैनेडियन सिस्टम, लेकिन ये के बाद वो उसको चेंज करने का सोच रहे हैं, रेफ्यूजी फर्स्ट। ये सबसे पहले रेफ्यूजीज को सपोर्ट करने की जरूरत है जी, उनका मेन ऑब्जेक्टिव। हाँ, मेन ऑब्जेक्टिव उनका यही है कि जो लोग परसिक्यूशन का सामना कर रहे हैं दुनिया भर में और खासतौर पर पाकिस्तान में, उनकी सपोर्ट करना, लीगल सपोर्ट, उनकी सोशल सपोर्ट और उनकी साइकोलॉजिकल सपोर्ट। राइट, ऑलराइट सर, एंड अगर आप हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ बता सकें तो। मैंने इंडायरेक्टली अपनी ऑर्गेनाइजेशन का रास्ती के साथ जिक्र किया है। जैसे मैंने बताया, पीस वेलफेयर एंड डेवलपमेंट एसोसिएशन, पौधा तंजीम बराए अमन, सलाम, बहबूद और तरक्की। ये ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली नीड बेस्ड और राइट बेस्ड अप्रोच दोनों पर काम करती है। नीड बेस्ड अप्रोच के तहत हम माइनॉरिटीज और पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए वेलफेयर की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे व्हील चेयर है, राशन है, एजुकेशन स्कॉलरशिप्स हैं। इसके अलावा यह है, जो जिस किस्म की भी जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज और माइनॉरिटीज को इवन लीगल सपोर्ट चाहिए, अगर हम खुद ना दे सके तो पार्टनर्स के थ्रू या नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। फिर जो दूसरा राइट बेस्ड काम है वो है हमारा लॉबिंग और एडवोकेसी का, जो मैंने जिक्र किया। तो एक बुनियादी तौर पर उसके जरिए से हम जो भी लोग हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, और ये इनडायरेक्ट सपोर्ट है जिसका काम है प्रो माइनॉरिटी लेजिस्लेशन,
मिसाल के तौर पे मसीही कम्युनिटी के जो आइली कवानीन है, क्रिश्चियन पर्सनल लॉज हैं, वो बहुत तकरीबन 150 साल पुराने कवानीन हैं, उनमें हम चेंज की कोशिश कर रहे हैं दीगर पार्टनर्स के साथ मिलके। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो 5% जॉब कोटा है माइनॉरिटीज का, जो हुकूमत ने 2009 में इंट्रोड्यूस कराया था, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के पर सही तरह से अमल किया जा, इम्प्लीमेंटेशन सही तरह से हो सके। फिर हम एजुकेशन कोटे की डिमांड कर रहे हैं गवर्नमेंट से कि जिस तरह 5% जॉब कोटा है, इसी तरह 5% तालीमी कोटा जो है वो भी होना चाहिए। अब याद रखें, जब मुस्लिम बहन भाई अकलियत में थे तो हिंदुस्तान में अंग्रेजों के दौर में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज और इदारों में, हायर एजुकेशन में खासतौर पे, उन्हें तालीमी कोटा हासिल था। तालीमी कोटे का या एजुकेशन कोटे का या माइनॉरिटी कोटे का बुनियादी मकसद होता है वो जो कम्युनिटीज जो पीछे रह गई हैं, जो बैकवर्ड हैं, उनको दूसरों के बराबर लाने के लिए अफर्मेटिव एक्शन फॉर द टाइम बीइंग जो है वो किए जा सके। तो हम एजुकेशन कोटे की भी डिमांड कर रहे हैं हम, और इस सब का बुनियादी मकसद जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है वो है इक्वल सिटीजनशिप, कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में और दुनिया भर में अकलियतों को एक बराबर का शहरी समझा जाए, एक समझा जाए। Alright, very well explained, sir. Sir, इसके अलावा can you please share your personal experience कि education की, क्योंकि अभी आप बात कर रहे थे कि about education quota. So how will this education quota improve the socio-economic condition for minority communities in Pakistan? बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं जो डायरेक्ट हैं। इसमें तो सबसे बड़ा प्रोग्राम तो ये हो सकता है कि हम लोगों के लिए, लोगों को एजुकेशनल स्कॉलरशिप्स जो हैं वो प्रोवाइड करें, गवर्नमेंट लोगों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करे। हम मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स जो कि सूबाई सतह पर है, वो स्कॉलरशिप देने का ऐलान तो करती है, लेकिन वो जो हमारे सिलेक्टेड पॉलिटिशियंस हैं वो सिर्फ अपने जानने वालों को ही देते हैं। मैंने आम किसी मसीह को ये नहीं देखा या हिंदू को कि उसे एजुकेशन जो कोटा है वो सपोर्ट मिली हो, एजुकेशनल स्कॉलरशिप जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का मिला हो, मैंने नहीं देखा। लेकिन उसको करने की जरूरत है। ये समझता हूँ कि माइनॉरिटीज के लिए एजुकेशन जो है वो दाखिल दिया जाए, और वो भी हायर एजुकेशन में खास तौर पे, जैसे लॉ के इदारे हैं, ताकि देखिए जितनी उनकी पब्लिक विजिबिलिटी ज्यादा होगी उतना ही उनका वजूद माशरे में तस्लीम और कबूल किया जाए। अभी क्या हाल हुआ है हमारे यहाँ जड़ा वाले वाकये में, जो असिस्टेंट कमिश्नर थे शौकत मसीह साहब थे, कितनी मेहनत से वो बंदा CSS करके आया होगा, और लोग क्या कह रहे थे, जो मुसलमान कम्युनिटी थी, कि एक चूड़े को हमारे ऊपर कमिश्नर बना दिया गया। तो ये कोई करने वाली बात है? ऐसी हरकतों से, ऐसे अल्फाज से तो जो मसीही बच्चे हैं वो एजुकेशन भी हासिल नहीं करना चाहते कि उन्होंने क्या कर लेना आगे जाके। जब उनको आगे जाके उनको यही सुनने का मौका, तो फिर क्या फायदा। उनके साथ एक और असिस्टेंट कमेटी मुझे उनका रात में वो उन्होंने भी जिक्र किया था कि वो जब कोई काम नहीं किसी का करती थी तो उनको एक खास नाम से पुकारा जाता था, उन्हें कहा जाता था कि आप नहीं करेंगी तो आपके ऊपर हम ड्रग्स नहीं लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो ये तरक्की करके बंदे ने जाना कहाँ है? देखें, सारी चीजों की एक ही बड़ी रेमेडी है, वो ये है कि मुल्क में इक्वालिटी हो और रूल ऑफ लॉ हो, कानून की नजर में सब बराबर हो, बस, चाहे क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, हिंदू है, अमीर है, गरीब है। क्योंकि यही हमारे मुल्क में नहीं है, इसलिए सिर्फ अकलियत ही नहीं, दीगर तबकात, खवातीन, पर्सन विद डिसेबिलिटीज, चिल्ड्रन, और इवन अक्सरियत में भी बहुत बड़ी तादाद, 70-80% तादाद जो है वो अंडर टॉक्स है, अंडर फिट है, अंडर प्रिविलेज्ड है, वो मसाइल का सामना कर रहे हैं। लेकिन चूंकि हम माइनॉरिटी से हैं तो हम जाहिर है माइनॉरिटीज की बात कर रहे हैं। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि दूसरों को मसाइल का सामना नहीं है, उनको भी शायद इतना ही है। लेकिन मसला ये कि मैं चूंकि माइनॉरिटी में हूँ, मेरा काम माइनॉरिटी राइट्स का है, इसलिए मैं उसको हाईलाइट कर रहा हूँ। एब्सोल्युटली राइट, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। इक्वालिटी के ऊपर तो बिल्कुल काम होना चाहिए, दैट बिकॉज हम सब सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान ही है ना, सो इक्वल राइट्स तो माइनॉरिटी हो या मेजॉरिटी, सबको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। जब ये इक्वल सिटीजनशिप आ जाएगी तो फिर माइनॉरिटी मेजॉरिटी का तस्वर ही नहीं रहेगा ना। हमारे मुल्क में सिर्फ इनइक्वालिटी नहीं है बल्कि रेसिज्म भी है। हम मजहब के नाम पे, हम डिसेबिलिटी की बेस पे, हम जेंडर की बेस पे लोगों के साथ रेसिस्ट एटीट्यूड इख्तियार करते हैं, और उससे सबसे बड़ी बात फिर उसको मानते भी नहीं है। फिर हम ऊपर से ये भी कहते नहीं जी हमारा कल्चर, हमारा समाज, हमारा मजहब, हम तो दुनिया से अफजल हैं, बिल्कुल अफजल हैं, लेकिन प्रैक्टिस हमारी -0 है, माइनस, जिसकी वजह से रेसिज्म बहुत आम है हमारे मुल्क।
Absolutely right. And sir, ये हम नहीं चाहते कि हमारे future generation में ये सब कुछ आए. So moving towards the last question of our today's session is, what is your vision for the future of minority rights in relation to international collaboration? देखें, मैंने पहले कहा था कि यूएन को अपनी प्रेजेंस जो है वो ह्यूमन ऑफिस ऑफ द ह्यूमन राइट्स जो है OHCHR उसकी बढ़ानी चाहिए. अगर यहाँ उसकी ऑफिस बन जाएगा या उसके साउथ एशिया में कोई ऑफिस बन जाएगा तो फिर जो माइनॉरिटीज का काम, माइनॉरिटीज के लिए ह्यूमन राइट्स का काम है वो ज्यादा इजीली कोऑर्डिनेट हो सकेगा. दूसरा, मैं ये चाहता हूँ कि माइनॉरिटीज के लोगों को यूएन फैमिली ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा से ज्यादा जॉब्स दें. जिस तरह खवातीन को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट के तहत जॉब दी जाती है, इस तरह माइनॉरिटीज के लोगों को भी जॉब दें, डिसेबल पर्सन को भी जॉब दें ताकि वो सिचुएशन बढ़े. इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन के मुख्तलिफ ममालिक जो है उन्हें चाहिए कि माइनॉरिटीज के लिए ज्यादा ग्रांट्स, ज्यादा प्रोजेक्ट्स जो है वो शुरू करें, एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू करें. और खास तौर पर एक बात मैं बड़े दिल के बोझ के साथ कहना चाहता हूँ, ये जो पाकिस्तान में फॉरेन एम्बेसीज हैं उनका रवैया है वीजा के सिलसिले में माइनॉरिटीज के साथ डिस्क्रिमिनेटरी है, टोटली डिस्क्रिमिनेटरी है. उसको तब्दील करने की जरूरत है, करना पड़ता है. भाई, असाइलम एक लेजिटिमेट राइट है, देना उस कंट्री का राइट है जहां पर लोग जाते हैं. ये ऑस्ट्रेलिया जैसा सिविलाइज कंट्री वीजा के लेटर पे लिख के देता है कि चूंकि आप क्रिश्चियन है इसलिए हम आपको वीजा नहीं देंगे. आई वुड लाइक टू सेंड कर्स ऑन. ऑस्ट्रेलिया जैसा मुल्क ऐसा करेगा तो फिर क्या है? हजारा के लोगों के लिए आप एक सूबा लहदा से बनाने के लिए तैयार, और क्रिश्चियंस के साथ इतनी ज्यादती. इसका मतलब ये है कि उन्हें फीडबैक गलत दिया गया है उनके जूनियर स्टाफ की तरफ, जिसको कि ठीक करने की जरूरत है. आप इक्वालिटी करें ना. मैं बहुत सारे वाकयात यहाँ शेयर कर सकता हूँ लेकिन शायद अभी वक्त नहीं है. बड़े से बड़ा मुल्क भी मसीहियों के साथ ज्यादती करता है वीजा देने में, और सिर्फ इस खतरे की बेस के ऊपर कि वो असाइलम अप्लाई करेंगे. भाई, असाइलम तो हर बंदा अप्लाई करता है, दुनिया भर से लोग आ रहे हैं, कितने सीरियंस हैं, कितने लोग हैं, तो ये नजला हमारे ऊपर ही क्यों गिरता है? आप ना दो असाइलम, जबरदस्ती है, लेकिन सिर्फ आप अजम्पशन की बेस के ऊपर लोगों का वीजा राइट, वीजा का जो सर्विस है उसको डिनाई नहीं करते. Absolutely right, sir. And I'm sure, sir, ये जो आपका विजन है और जो आपने जितनी भी बातें कही हैं, your suggestions, your views, बिल्कुल सर, जब ये वीडियो अपलोड होगी तो आपकी वॉइस पूरे साउथ एशिया में जब स्प्रेड होगी तो आई एम श्योर सर देयर विल बी लॉट ऑफ पीपल हु विल लर्न अ लॉट फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस. एक सेकंड रुकिएगा, मुझे एक दो और इशू पर बात करनी है सिर्फ 2 मिनट के लिए, जिस पर काम करने की जरूरत है. एक तो मैंने आपको कहा था इक्वालिटी, इक्वल सिटीजनशिप. दूसरा, पाकिस्तान में फोर्स कन्वर्जन मसीही खवातीन का एक बहुत बड़ा मसला, और खासतौर पे चिल्ड्रन खवातीन का मसला, उसको रोकने की जरूरत है. ब्लॉकफेमी के लॉस को, कानून को अगर खत्म नहीं किया जा सकता, वैसे हमारी डिमांड तो ये कि इसे खत्म करें, क्योंकि वक्त के साथ ये साबित हुआ है कि ये कानून जो है वो मिस यूज ज्यादा हो रहा है. तो उसके बाद इसको खत्म नहीं किया जा सकता तो एटलीस्ट इसके इस्तेमाल जो है उसको ज्यादा कंट्रोल्ड बनाने की कोशिश करनी चाहिए. और सबसे बढ़ के अगर कोई किसी के ऊपर झूठा इल्जाम लगाता है तो उसको भी वही सजा दी जाए ताकि कोई इसका मिस यूज करने के मुताबिक सोच ना सके. एजुकेशन कोटा जो है माइनॉरिटीज को देना चाहिए फौरी तौर पे 5% हायर एजुकेशन खास तौर पर. और उसके साथ ही जितने भी प्रो माइनॉरिटी लेजिस्लेशन जो माइनॉरिटीज की सोशियो इकोनॉमिक और कल्चरल लाइफ को बेहतर बनाने के लिए दरकार है, उसके लिए रियासती इदारों को, खासतौर पर पार्लियामेंट को, सियासी जमातों को तवज्जो देनी चाहिए. और जो इलेक्शन प्रोसेस है, ये सिलेक्शन वाला प्रोसेस हमें काबिल कबूल नहीं है. हमें इलेक्टेड नुमाइंदे मसीही चाहिए जो कि मुंतखब होकर आए और जो अपने लोगों के सामने जवाब दें. ये जितने भी 35 अरकान मुंतखब होकर आते हैं ये सियासी जमातों के माउथपीस होते हैं. ये सिर्फ अपना 5 सालों का वक्त गुजारते हैं, टाइम गुजारते हैं, स्कीमों में पैसा कमाते हैं और कुछ नहीं करते, कोई आवाज नहीं उठाते माइनॉरिटीज के लिए. तो इन तमाम चीजों के ऊपर काम करने की जरूरत है. थैंक यू. Absolutely is right, sir. Sir, I'm sure आपके जो points हैं उन वो highlight हुए होंगे. जैसे ही हम भी ये अपने platform से आपके जब voices share करेंगे. So, sir, it was wonderful talking to you, and I personally have learned a lot by just the small interview session. Thank you so much, sir, Sabir Michael. Thank you.